ایک ایسا اندھا فقیر جس کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے آتے تھے، اسی کے سپرد اتنا خزانہ کر دیا گیا جس سے ایک پوری سلطنت خریدی جا سکتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ اس امانت کو سنبھال پائے گا یا نہیں۔ بغداد کا شاہی بازار اپنی رونق اور چہل پہل کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہاں دور دور کے ملکوں سے تاجر آتے، سونا، چاندی، ریشم اور مسالے فروخت کرتے۔ امیروں کی سواریاں گرد اڑاتی ہوئی یہاں سے گزرتی، لیکن غریبوں کی آہیں اسی شور میں کہیں دب کر رہ جاتی۔ اسی بازار کے ایک پرانے اور گندے کونے میں ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا اندھا فقیر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا نام بابا نور الدین تھا۔ اس کے چہرے پر جھریوں کا جال تھا جو اس کی طویل اور کٹھن زندگی کی داستان سناتا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور تھیں، لیکن چہرے پر ایک عجیب سا سکون رہتا تھا۔ اس کے کپڑے اتنے پرانے تھے کہ کپڑے سے زیادہ پیوند نظر آتے تھے۔ وہ صبح سے شام تک وہیں پر بیٹھا رہتا تھا، لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کے پیالے میں کچھ ڈال دیتا تو وہ کہتا اللہ تمہارا بھلا کرے، اور اگر اسے کوئی جھڑک دیتا تو وہ خاموش رہتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بازار کے لوگ اسے پاگل نہیں بلکہ ایماندار کہتے تھے۔ جب بھی دکاندار نماز کے لیے جاتے تو اپنا قیمتی سامان اس اندھے فقیر کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ نہ یہ بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی بے ایمانی کرے گا، مگر افسوس اس پر بھروسہ تو سب کرتے تھے، لیکن اس کی بھوک کا خیال کوئی نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن بغداد کا سلطان جلال الدین بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال دریافت کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے ایک عام آدمی کا لباس پہنا ہوا تھا۔ گھومتے گھومتے اس کی نظر بابا نور الدین پر پڑی۔ اسی دوران ایک امیر سوداگر اس کے پاس آیا اور اس کے پاس اپنی ایک بھاری تھیلی رکھ کر بولا، بابا اس کا خیال رکھنا۔ بابا نے بس سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ تاجر دوبارہ آیا، اپنی تھیلی اٹھائی اور خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے شکریہ ادا بھی نہیں کیا اور بابا نور الدین بھی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کا دل بھر آیا اور سوچا کہ یہ دنیا کتنی مطلبی ہے، لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سلطان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اس اندھے فقیر کی اصل ایمانداری کا امتحان لیا جائے۔ وہ آہستہ آہستہ بابا نور الدین کے پاس گیا اور ایک تھکے ہوئے مسافر کی طرح آواز نکالتے ہوئے بولا، السلام علیکم اے بابا جی۔ بابا نور الدین نے سر اٹھایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کون ہو؟ تمہاری آواز میں پردیس کی دھکن ہے۔ سلطان ایک تھکے ہوئے مسافر کی طرح بزرگ کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، بابا میں دور دراز کے ملک سے آیا ہوں اور میں حج پر جا رہا ہوں۔ میرے پاس کچھ قیمتی سامان ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ راستے میں کوئی مجھے لوٹ نہ لے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ تم سب سے زیادہ ایماندار ہو۔ بابا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا لوگ تو پتھر کو بھی خدا کہہ دیتے ہیں، لیکن میں تو پھر بھی ایک اندھا فقیر ہوں۔ سلطان نے اپنی بغل سے ایک ریشمی تھیلی نکالی۔ اس کے اندر نایاب ہیرے موتی تھے اور وہ اتنے قیمتی تھے جس سے پورا شہر خریدا جا سکتا تھا۔ اور سلطان نے بابا سے کہا کہ بابا اس میں کوئی سونا چاندی نہیں، بس کچھ پرانے پتھر اور پرانی یادیں ہیں جو میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ کیا تم اس تھیلی کو اپنے پاس رکھو گے؟ پھر بابا نور الدین نے کہا، اگر یہ قیمتی نہیں تو تم خود کیوں نہیں لے جاتے؟ سلطان کہنے لگا، بابا جی رستہ بہت طویل ہے اور میں سامان کم رکھنا چاہتا ہوں۔ بابا نور الدین نے ایک گہری سانس لی اور اس تھیلی کو اپنے پھٹے ہوئے کرتے میں چھپا لیا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی اور میں زندہ رہوں گا تمہاری یہ امانت میرے پاس محفوظ رہے گی۔ جب سلطان واپس جانے لگا تو بابا سے کہنے لگا، بابا جی میں چاہے 4 سال میں آؤں یا چاہے 10 سال میں، لیکن اس تھیلی کو کھولنا نہیں۔ بابا نے وعدہ کیا تمہاری امانت ایسے ہی ملے گی جیسی تم نے دی ہے۔ سلطان وہاں سے چلا گیا، لیکن سلطان جانتا تھا کہ اس نے اپنی سلطنت کا سب سے قیمتی خزانہ ایک بھکاری کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اب اصل آزمائش کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ کیا بھوک، غربت اور تنگی کی آزمائش بابا نور الدین کو ہرا پائے گی؟ جب بھی بابا نور الدین کی تھوڑی سی آنکھ لگتی تو وہ چونک کر اٹھ جاتا اور جلدی سے اس تھیلی کو ٹٹولتا۔ اسے ڈر رہتا کہ کہیں اس کی آنکھ نہ لگ جائے اور اس قیمتی تھیلی کو کوئی چرا نہ لے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرتے گئے، موسم بدلتے رہے اور وقت گزرتا گیا۔ گرمیاں آئیں، چلی گئی، سردیاں آئیں، وہ بھی گزر گئیں، لیکن وہ مسافر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اب بازار کے لوگ بابا نور الدین کو ایک عجیب سی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ لوگوں نے غور کیا کہ بابا نور الدین بار بار اپنے کرتے کے نیچے کسی چیز کو ٹٹولتے ہیں، جیسے اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوں۔ پھر کچھ شرارتی بچوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک دکاندار نے مذاق کرتے ہوئے کہا، ارے او بابا، یہ کیا چیز ہے جو تم نے اپنے کرتے کے نیچے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ تو نہیں مل گیا؟ بابا نور الدین نے جب یہ سنا تو وہ گھبرا گئے اور اپنے ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر بولے، ارے نہیں بیٹا، یہ تو کسی مسافر کی امانت ہے جن کی کوئی قیمت نہیں۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگ ہنسنے لگے، ارے پتھر بھی کوئی امانت رکھواتا ہے۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔
1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन जो मुसाफिर के भेष में आया था उसका कहीं निशान नहीं नजर आता था। अब बाबा नूरुद्दीन बहुत कमजोर हो चुके थे, कमर झुक गई थी और हाथ कांपते थे, लेकिन जुबान पर हर वक्त एक ही बात रहती, वो मुसाफिर आएगा, वो जरूर आएगा। फिर अचानक बगदाद पर कहर टूट पड़ा, बारिशें रुक गईं, फसलें सूख गईं और अनाज की कीमतें आसमान को छूने लगी। और वो लोग जो बाबा नूरुद्दीन की प्याले में कुछ डाल देते थे, अब वो भी भूखे रहने लगे। अब बाजार की रौनक खत्म हो गई, अमीरों ने अपने खजानों के मुंह बंद कर लिए और गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ये वक्त बाबा नूरुद्दीन के लिए कयामत से कम नहीं था। पहले उन्हें दिन में से एक आध बार कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था, लेकिन अब वो 2-2 दिन भूखे रहने लगे थे। उनका जिस्म ऐसे नजर आता था जैसे हड्डियों का ढांचा हो, उनका पेट कमर से चिपक गया था और हर वक्त भूख से उनका सर चकराता रहता था। एक शदीद सर्द रात थी और बाबा नूरुद्दीन उसी दरख्त के नीचे सुकड़ कर बैठे थे। 3 दिन से उनके पेट में कुछ भी नहीं गया था, भूख उनकी आंतों को काट रही थी। उसी वक्त बाबा नूरुद्दीन के दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। उनका हाथ उस थैली के अंदर गया। उन्होंने महसूस किया कि इनके अंदर जो पत्थर मौजूद हैं वो नुकीले और तेज हैं। उसी वक्त उनके जहन में शैतान ने वसवसा डाला, नूरुद्दीन क्यों भूखे प्यासे मर रहे हो? अगर इसके अंदर से कुछ निकाल लो तो तुम्हारी जान बच सकती है और हो सकता है कि वो मुसाफिर कभी वापस ना आए। बाबा नूरुद्दीन के कांपते हुए हाथ उस थैली के मुंह तक पहुंच गए। भूख कह रही थी कि थैली को खोल दे, लेकिन ज़मीर कहता था कि नहीं। एक लम्हे के लिए उन्होंने सोचा कि अगर वाकई ही इसमें खजाना हुआ तो मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। उन्होंने वो पोटली अपनी गोद में रखी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरा खोलने लगे, लेकिन जैसे ही वो गिरा खुलने वाली थी तो उसे वो मुसाफिर की आवाज़ याद आई, बाबा इस थैली को कभी मत खोलना, इसमें मेरी अमानत है। बाबा नूरुद्दीन के हाथ झट से पीछे हट गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए उस पोटली को दोबारा मजबूती के साथ बांध दिया और कहने लगे, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, चाहे मैं भूख प्यास से मर जाऊँ, मैं अमानत में खयानत नहीं करूँगा। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उसे वादा किया है, चाहे वो 10 साल के बाद भी आएगा तो मैं उसकी अमानत को वापस करूँगा। वो एक सब्र का घूंट पीकर रह गए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि असल इम्तहान अभी बाकी है। कहत अब मौत बन चुका था। बगदाद की गलियों में भूख का राज था। बाबा नूरुद्दीन चलने फिरने से भी कासिर हो गए थे। एक दिन एक दुकानदार ने उन्हें ठोकर मार कर कहा, ओ बुढ़े, यहाँ से दफा हो जा, तेरी शक्ल देखकर यहाँ पर ग्राहक नहीं आते। बाबा नूरुद्दीन में बोलने की ताकत नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद को घसीटते हुए शहर से बाहर एक वीरान खंडर में आकर रहने लगे, जहाँ न छत थी न दीवार, बस टूटे पत्थर और आवारा कुत्ते। गर्मी, सर्दी, बारिश सब उसके जिस्म पर हमला करती और वो पोटली उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा अजीज उसे बना लिया था। वो इतनी मजबूती के साथ बंधी हुई थी कि रस्सी उनके गोश्त में धंस गई। उनके जिस्म से खून बहता, जख्म बनते, लेकिन उसे ढीला नहीं किया। एक रात कुछ लुटेरे डाकू वहाँ पर आ गए। उन्होंने देखा कि यह बूढ़ा आदमी अपने कमर पर हाथ रखे हुए है और हाथ को हटाता नहीं। उन्होंने सोचा कि जरूर इस बूढ़े आदमी के पास कोई माल है। एक आदमी बोला, ओ बुढ़े, जो कुछ भी तेरे पास है निकाल दे। बाबा नूरुद्दीन कांपती हुई आवाज में बोले, मेरे पास कुछ भी नहीं, बस एक मुसाफिर की अमानत है। लेकिन उन डाकुओं ने बाबा नूरुद्दीन पर यकीन नहीं किया। उन्होंने बाबा नूरुद्दीन को मारना शुरू कर दिया, लाते, घूंसे और उनके कपड़े फाड़ दिए। लेकिन बाबा नूरुद्दीन एक जख्मी शेर की तरह वो मार खाते रहे और उस पोटली के ऊपर उल्टे लेट गए और चिल्लाकर बोले, चाहे मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैं ये थैली नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये किसी की अमानत है। डाकुओं ने बाबा नूरुद्दीन को बहुत मारा और हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बूढ़ा आदमी इस थैली को नहीं छोड़ रहा, तो उन्होंने उस थैली को छू कर देखा तो वाकई उसमें यूँ मालूम होता था जैसे पत्थर के टुकड़े हैं। वो वहाँ से चले गए। बाबा नूरुद्दीन दर्द से कहराते हुए वहीं पर पड़े रहे। दर्द से उनका जिस्म टूट रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने थैली को चूमा और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरा शुक्र है, आज मेरी जान चली जाती लेकिन अमानत बच गई। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया और 5 साल गुजर गए थे। अब बाबा नूरुद्दीन इंसान कम और जिंदा लाश ज्यादा नजर आते थे। आंखों के गड़े गहरे हो गए थे, बाल और दाढ़ी मिट्टी से अट गई थे। लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। बाबा नूरुद्दीन अकेले बड़बड़ाते, वो आएगा, वो मुसाफिर जरूर आएगा। लोग उनकी बात को सुनकर हंसते, क्या बूढ़े आदमी कौन आएगा, अब तो तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन बाबा नूरुद्दीन नहीं जानते थे कि उनका इम्तिहान खत्म होने वाला है। वो मुसाफिर आदमी जो 5 साल पहले अपनी अमानत रख कर गया था, वो अब दोबारा बगदाद की सरजमीन पर कदम रख चुका था। क्या सुल्तान नूरुद्दीन को वो बूढ़ा अंधा फकीर याद होगा? और अगर याद होगा तो क्या वो हड्डियों का ढांचा पहचान पाएगा? 5 सालों के बाद
सुल्तान जलालुद्दीन हज और बाकी कामों से फारिग होकर वहाँ पर पहुँचा। पूरे शहर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ लोग खुशियाँ मना रहे थे और लोग अपने बादशाह को देखने के लिए बेताब थे। लेकिन इस शोर के दरमियान सुल्तान का दिल बेचैन था। उसे वो वादा याद था, वो अंधा फकीर याद था। उसने महल में दाखिल होते ही अपने वजीर से पूछा, शहर के हालात कैसे हैं? वजीर ने सर झुकाकर अदब से कहा, बादशाह सलामत, शहर के हालात बहुत ख़राब हैं। पिछले दिनों शहर में कहत पड़ा था, बहुत से लोग मर गए और बहुत से घर उजड़ गए। यह सुनकर फौरन सुल्तान का दिल धक से रह गया और उसके सामने बाबा नूरुद्दीन का चेहरा आ गया। क्या वो बूढ़ा फकीर जिंदा होगा? सुल्तान से रहा न गया। सुल्तान ने फिर वही आम आदमी का भेष बदला और महल के पिछले दरवाजे से बाजार में निकल गया। बाजार में रौनक तो लौट आई थी, लेकिन सुल्तान की नजरें बाजार के करीब उस पुराने दरख्त को ढूंढ रही थी। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो जगह खाली थी और एक नया फल फरोश बैठा था। सुल्तान ने उस आदमी से पूछा, यहाँ एक बूढ़ा अंधा फकीर बैठा करता था। दुकानदार ने हकारत से जवाब दिया, ओ वो पागल बूढ़ा आदमी, वो तो कब का यहाँ से गायब हो गया। कहत में बड़े बड़े लोग मर गए, वो कहाँ से जिंदा बचा होगा। सुना है वो शहर से बाहर उस पुराने खंडर में पड़ा था, क्या पता वहीं पर मर गया होगा। सुल्तान ने कुछ नहीं कहा और ना कुछ सुना, बस उस पुराने वीरान खंडर की तरफ दौड़ पड़ा। सुल्तान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एक खौफ खाए जा रहा था, क्या मेरी अमानत की वजह से उस फकीर की जान चली गई? सुल्तान जैसे ही खंडर में दाखिल हुआ तो उसे खामोशी और बदबू ने घेर लिया। उसने आवाज लगाई, बाबा नूरुद्दीन। कोई जवाब ना आया। उसने मशाल जलाई और आगे बढ़ा तो उसे दीवार के पीछे कपड़ों का एक ढेर नजर आया। उसने जब करीब जाकर देखा तो सुल्तान के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, हड्डियों का ढांचा नजर आता था। क्योंकि उसके जिस्म पर गोश्त कहीं भी नजर नहीं आता था। कपड़े फटे हुए और बाल और दाढ़ी मिट्टी में अटी हुई। उनकी सांसें कमजोर धागे की तरह चल रही थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि बेहोशी में भी उनके दोनों हाथ अपनी कमर पर बंधी हुई उस पोटली को मजबूती से पकड़े हुए थे। नाखून अपने ही खाल में धंस चुके थे। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बाबा नूरुद्दीन की तरफ झुके और रोते हुए बोले, बाबा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा नूरुद्दीन ने बड़ी मुश्किल से लब हिलाए और पूछा, कौन? सुल्तान आहिस्ता से उनके करीब झुके और उनके कान में आहिस्ता से कहा, बाबा मैं वही मुसाफिर हूँ, मैं आ गया हूँ अपनी अमानत वापस लेने के लिए। जब बाबा ने यह सुना तो जैसे उनके जिस्म में जान आ गई हो। बाबा नूरुद्दीन के चेहरे पर जैसे रोशनी आ गई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से सुल्तान को छुआ और कहा, तुम आ गए। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। लोग कहते थे कि तुम मर गए। फिर बाबा नूरुद्दीन ने पूरी ताकत लगाकर वो थैली खोलने की कोशिश की, लेकिन वो गिरा खुल नहीं रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। वो कहने लगे, बेटा मेरी उंगलियां और मेरे हाथ अब काम नहीं करते, तुम खुद इसे देख लो। मैंने इसे नहीं खोला, मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की, मैंने तुम्हारा वादा नहीं तोड़ा। यह सुनकर सुल्तान जलालुद्दीन का दिल पिसीज गया। उसने वो थैली खोली तो वो खून और पसीने से भीगी हुई थी। सुल्तान का ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था कि उसने एक बादशाह होकर एक बूढ़े फकीर का इतना सख्त इम्तिहान लिया। उसने अपने कांपते हुए हाथों में वो थैली ली। वो सिर्फ अब एक थैली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वफादारी और ईमानदारी की मिसाल थी जो तारीख में कभी न हो। सुल्तान ने देखा कि बाबा नूरुद्दीन की सांसें टूट रही थी। सुल्तान ने बाबा को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, हिम्मत करो बाबा, तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो गया। सुल्तान उन्हें लेकर महल में पहुंचे। जब वजीरों ने देखा तब वो हैरान रह गए कि सुल्तान एक गंदे से भिखारी फकीर को गोद में उठाए हुए हैं। वजीर आगे आए और बोले, हजूर हमें दे दें। लेकिन सुल्तान गुस्से में बोला, खबरदार, किसी ने हाथ लगाया तो ये कोई आम फकीर नहीं, मेरा सबसे खास मेहमान है। फौरन हकीम बुलाए गए। बाबा नूरुद्दीन को नहलाया गया, नरम लिबास पहनाया गया और बिस्तर पर लिटाया गया। 2 दिन तक वो बेहोश रहे और सुल्तान उनके पास बैठा रहा। तीसरे दिन बाबा नूरुद्दीन ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उन्हें खुशबू महसूस हुई, नरम बिस्तर का एहसास हुआ। वो घबराकर उठने लगे और उनके हाथ फौरन उनकी कमर की तरफ गए। मेरी पोटली, मेरी अमानत और वो मुसाफिर कहाँ है? सुल्तान ने फौरन उनके हाथ थाम लिए। बेफिक्र हो जाओ बाबा, तुम्हारी अमानत महफूज है, मेरे पास है। बाबा नूरुद्दीन ने आवाज को पहचान लिया। मुसाफिर, क्या तुम ही हो? नूरुद्दीन ने घबराए। बाबा नूरुद्दीन घबराया और बोला, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया हूँ? सुल्तान बोला, नहीं बाबा, तुम जिंदा हो और ये बगदाद का शाही महल है। बाबा नूरुद्दीन घबरा कर बोले, मैं शाही महल में, और तुम तो एक मुसाफिर थे। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा मैं मुसाफिर नहीं बल्कि मैं सुल्तान हूँ। ये सुनकर बाबा नूरुद्दीन कांपने लगे और बिस्तर से नीचे उतरने लगे। बादशाह सलामत, मुझसे क्या खता हो गई? मैंने तो अमानत की हिफाजत की थी। सुल्तान ने उन्हें रोक लिया और इत्मीनान से बिठाते हुए कहा, नहीं बाबा, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुमसे झूठ बोला, तुमसे धोखा किया। वो जो थैली थी उसमें पत्थर नहीं थे। बाबा हैरान रह गए, तो फिर उसमें क्या था? एक सिपाही एक खाली थाल ले आया। सुल्तान ने वो थैली उठाई
और बाबा नूरुद्दीन के हाथ में रख दी और कहा, इस थैली को खोलो और देखो तुमने 5 साल तक किस चीज की हिफाजत की थी। बाबा नूरुद्दीन ने आहिस्ता आहिस्ता उस थैली को खोला। जैसे ही वो थैली खुली तो कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और खूबसूरत नायाब मोती बिस्तर पर बिखर गए। वो नायाब और कीमती हीरे मोती थे। बाबा नूरुद्दीन देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उनके हाथों ने सच को पहचान लिया था। उन्होंने एक हीरा अपने हाथ में उठाया और बोले, सुल्तान ये पत्थर नहीं है। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बाबा, ये पत्थर नहीं है, ये कीमती हीरे हैं और तुमने 5 साल तक इनकी हिफाजत की है। उसके बाद सुल्तान खड़े हुए और ऐलान किया, और ये बुजुर्ग आज से इस पूरी सल्तनत के अमीर हैं। मैं इन्हें पूरे शाही खजाने का निगहबान मुकर्रर करता हूँ और ये खजाना जिसकी इन्होंने 5 साल तक हिफाजत की है, ये सब का सब इनका है। पूरे महल में सन्नाटा फैल गया। बाबा नूरुद्दीन रोने लगे। नहीं सुल्तान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपनी अमानत को वापस करना चाहता था। सुल्तान ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं बाबा, तुमने इंसानियत को जिंदा किया है। बाबा नूरुद्दीन कांपती हुई आवाज में बोले, ये कैसे पत्थर हैं? ये तो चीकने हैं और इनका वजन भी अलग सा है। सुल्तान ने बाबा नूरुद्दीन का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, ये वो कीमती दौलत है जिसके लिए दुनिया के बादशाह एक दूसरे का गला काट देते हैं। बेकीमत हीरे। ये सुनकर बाबा नूरुद्दीन के हाथों से वो हीरे छूट गए, जमीन पर गिर पड़े और बाबा नूरुद्दीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ज़ारो कतार रोते हुए बोले, हीरे, यानी मैं 5 साल तक अपनी कमर पर मौत बांधकर फिर रहा था। सुल्तान, ये आपने मेरे साथ क्या किया? मेरे पास इतनी दौलत थी कि मैं पूरी शहर को खरीद सकता था, लेकिन मैं भूख से तड़पता रहा। लोग मुझे ठोकरें मारते रहे। अगर मुझे मालूम होता तो शायद शैतान मुझे बरगला लेता और मैं एक हीरा बेच डालता, लेकिन आपने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया। सुल्तान की आंखें भी नम हो गई। वो आगे बढ़े और बाबा नूरुद्दीन को अपने गले से लगा लिया। बाबा, मैं यही तो चाहता था। जब इंसान के पास कुछ ना हो तो ईमान को रखना आसान होता है, लेकिन इंसान के पास सब कुछ हो और फिर भी वो भूखा सो जाए लेकिन अमानत में खयानत ना करे तो असल बादशाह वही होता है। फिर सुल्तान ने जमीन पर बिखरे हुए उन हीरों की तरफ उंगली का इशारा किया और कहा, देखो, दुनिया में लोग मेरी दौलत से डरते हैं या बिकते हैं। मेरे सिपाही और वजीर, वो भी बिक सकते हैं, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो मर सकते हैं लेकिन अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। बाबा नूरुद्दीन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, सुल्तान, इन हीरों का क्या? ये तो आपकी अमानत है, इन्हें वापस ले लीजिए और मुझ पर बोझ हल्का कर दीजिए। सुल्तान ने कहा, बाबा, ये हीरे मैंने आपको वापस लेने के लिए नहीं दिए थे। बाबा बोला, तो फिर सुल्तान ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और मैं जिसे अपने खजाने की चाबी सौंप सकूं, लेकिन मुझे अपनी पूरी सल्तनत में तुम्हारे जैसा ईमानदार कोई नहीं मिला। लेकिन बाबा नूरुद्दीन ने नरमी से कहा, नहीं सुल्तान, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे वही दरख्त दे दीजिए, मुझे वही सुकून चाहिए। यह सुनकर सुल्तान और भी मुतासिर हुआ। जो आदमी इतनी दौलत को ठुकरा दे, इससे बढ़कर अमीर और कौन हो सकता है। फिर सुल्तान ने कहा, बाबा, तुम्हें वो दरख्त भी मिलेगा और वो सुकून भी, लेकिन आज तुम्हें मेरा एक फैसला मानना होगा। तुमने मेरी अमानत की हिफाजत की, अब मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूं। फिर सुल्तान ने वजीर की तरफ इशारा किया और कहा, कल दरबार सजेगा और पूरा बगदाद देखेगा कि एक अंधे फकीर की झोली में बादशाह का ताज छुपा हुआ था। अगले दिन बगदाद का दरबार खचाखच भरा हुआ था। वजीर, अमीन, गरीब, अमीर सब जमा थे। फिर ऐलान किया गया कि सुल्तान जलालुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान जलालुद्दीन तख्त पर बैठे, लेकिन आज उनके साथ वाली कुर्सी खाली नहीं थी। उस पर बाबा नूरुद्दीन बैठे थे। सफेद लिबास, चेहरे पर नूर और सर फखर से बुलंद। दरबार में चमगोइयां होने लगी कि ये तो वही फकीर है, ये यहाँ कैसे? सुल्तान ने हाथ उठाया और खामोशी छा गई। फिर सुल्तान ने कहा, ए बगदाद के लोगों, तुम अपनी अकड़, अपनी दौलत पर बड़ा गुरूर करते हो। तुमने इस बूढ़े आदमी को ठोकरें मारी, इसको अंधा कहा, इसे पागल कहा, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि असल अंधा कौन है। सुल्तान ने वो हीरे वाली थैली सबके सामने रखी और रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। ये कीमती हीरों से भरी हुई थैली 5 साल तक इस बूढ़े आदमी की कमर के साथ बंधी रही। जब कहत में तुम अपना ईमान बेच रहे थे, ये शख्स भूखा सो रहा था, लेकिन इसने इस अमानत को हाथ तक न लगाया। इसने अपनी भूख मिटाने के लिए भी अमानत में खयानत नहीं की। असल अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं, असल अंधा वो है जिसका ज़मीर मर जाए। और असल बादशाह वो नहीं जिसके पास तख्त हो, बल्कि असल बादशाह वो है जिसके पास ईमान हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और जिन लोगों ने बाबा नूरुद्दीन का मजाक उड़ाया था, उनके सर शर्मिंदगी से झुक गए। और वो दुकानदार जिसने इस बूढ़े फकीर को उस दरख्त के नीचे से ठुकराया था, उसे यकीन था कि आज इसका अंजाम मौत होगा। सुल्तान जलालुद्दीन ने उस दुकानदार को आगे बुलाया। वो आदमी आकर घुटनों के बल गिर गया।
रहम सुल्तान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। सुल्तान ने बाबा नूरुद्दीन की तरफ देखा और कहा, बाबा, इस आदमी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज तुम जो भी सज़ा सुनाओगे वो इसे दी जाएगी। बाबा नूरुद्दीन आहिस्ता से उठते हुए उसके सर को टटोलने लगे। उसके सर पर हाथ रखकर नरमी से बोले, नहीं सुल्तान, इसे माफ़ कर दीजिए। इसने मुझे वहाँ से निकाला, तभी मैं खंडर में गया और शायद इसीलिए मैं बच गया। अगर मैं बाजार में रहता तो कोई ना कोई मुझे मार देता। हर चीज़ में कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत होती है और मैं अपने दिल में किसी के लिए मेल नहीं रखना चाहता। ये बात सुनकर पूरे दरबार में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। एक ऐसा अंधा फकीर जिसके पास कुछ नहीं था, उसके पास बादशाहों से भी बड़ा दिल था। सुल्तान जलालुद्दीन अपने तख्त से उठे और अपना ताज उतार कर उस बूढ़े फकीर के सर पर रख दिया और कहा कि बाबा, तुमने आज साबित कर दिया कि मेरी दौलत से नहीं दिल से होती है। तुमने मेरी अमानत वापस कर दी, लेकिन मैं ये अमानत अपने पास नहीं रखूंगा। फिर सुल्तान ने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, आज से ये कीमती हीरे जवाहरात बाबा नूरुद्दीन की मलकियत है। चूँकि उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है तो उनके हुक्म से पूरे शहर में हर मोहल्ले के अंदर मुसाफिर खाने बनाए जाएंगे, जहाँ हर गरीब, हर मस्कीन और हर मुसाफिर को रहने के लिए मुफ्त जगह और खाना मिलेगा और ये सब बाबा नूरुद्दीन के नाम से जाना जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।